یہ گاؤں کے سرکاری ڈاکٹر تو صحیح سے چیک نہیں کرتے مریض کو۔ مجھے ابا کی حالت دیکھ کر ہر انسان پر غصہ آ رہا تھا۔ اماں کہنے لگی، ارے شہر جانے کے لیے بہت سے پیسے بھی ہونے چاہیے، ایک تو شہر اتنی دور ہے، اوپر سے شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹرز اتنی مہنگی مہنگی دوائیاں لکھ کر دیتے ہیں، کہاں سے کروائیں گے ہم غریب لوگ تیرے باپ کا چیک اپ؟ اماں خود سر پکڑے رو رہی تھی۔ اماں میں اپنی بکری بیچ دیتی ہوں، آخر میں نے فیصلہ کیا۔ اماں حیران رہ گئی تھی۔ میں جو اپنی لاڈلی بکری سے بہت پیار کرتی تھی، صرف ایک دن کی تھی جب میں نے اسے پالنا شروع کیا تھا، اور آج وہ بڑی ہو گئی تھی۔ ابھی تو وہ دودھ دینے اور حاملہ ہونے کے قابل ہوئی تو میں اسے بیچنے کا سوچ رہی تھی۔ اماں کہنے لگی، کیا تو سچ میں ہی اپنی لیلا کو بیچ دے گی؟ تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اماں سے کہنے لگی، ابا سے بڑھ کر مجھے کچھ عزیز نہیں ہے، میں کل ہی اسے گاؤں کے نزدیک والی منڈی میں لے جاؤں گی۔ میں فیصلہ کر چکی تھی۔ اماں خاموش ہو گئیں، جبکہ ابا گہری نیند دواؤں کے زیر اثر سو رہا تھا۔ دوسرے ہی دن میں گاؤں میں لگنے والی اس منڈی میں جا پہنچی جہاں پر لوگ اپنے جانور لے کر آتے تھے۔ میں ایک درخت کے نیچے کھڑی تھی، لیکن لوگ مجھے معصوم اور غریب لڑکی سمجھ کر میری بکری کی بہت کم قیمت لگا رہے تھے، کوئی 10,000 تو کوئی 12,000، لیکن میں جانتی تھی کہ میری بکری 30-35 ہزار سے کم میں فروخت نہیں ہوگی۔ لیکن شاید لوگ سمجھ رہے تھے کہ میں ایک کم عمر اور غریب لڑکی ہوں، اسی لیے انہیں اتنی ہی قیمت میں دے کر چلی جاؤں گی۔ ایک تو اس بکری میں میری جان بستی تھی، بڑے لاڈ پیار سے میں نے اسے پال پوس کر بڑا کیا تھا، پھر خود سے جدا کرنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، اگر ابا کی بیماری کا خیال نہ ہوتا تو۔ لیکن شام سے رات ہو گئی، میری بکری کا کوئی خریدار نہیں آیا۔ اب میں بڑی مایوس تھی، ایک ایک کر کے لوگ وہاں سے چلے گئے، اب میں اکیلی ہی وہاں کھڑی رہ گئی تھی۔ سوچا کہ کل آ کر دیکھتی ہوں، شاید کوئی خریدار آ جائے، لیکن پھر ہوش اڑ گئے جب میں نے ہر طرف تاریکی کے سائے دیکھے۔ رات اتنی زیادہ ہو گئی تھی اور میں نے یہ بھی خیال نہ کیا کہ ابھی مجھے اپنے گاؤں بھی واپس لوٹنا ہے۔ جلدی جلدی اس سنسان راستے سے گزرتے ہوئے میں اپنی بکری کی رسی تھامے گھر لوٹ رہی تھی، جب بیچ راستے میں مجھے کسی کے پکارنے کی آواز آئی، اے لڑکی، یہ بکری مجھے دے کر جاؤ۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہاں ایک انتہائی حسین نوجوان کھڑا تھا جس کی سفید آنکھیں اندھیرے میں خوب چمک رہی تھی۔ میں پہلے تو اسے دیکھ کر ڈر گئی، پھر خیال آیا کہ شاید یہ کوئی جانور خریدنے آیا ہوگا، تبھی تو یہ میرے پیچھے پیچھے یہاں تک چلا آیا ہے۔ میں ڈرتے ڈرتے اسے کہنے لگی، میری بکری پورے 30,000 کی ہے اور مجھے پیسوں کی بھی ضرورت ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہیں 40,000 دوں گا، لیکن یہ بکری مجھے دے دو، مجھے اس کی سخت ضرورت ہے۔ کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ میں جلدی سے کہنے لگی، جی ہاں، دودھ بھی دیتی ہے، اس نے ابھی ابھی 2 بچوں کو بھی جنم دیا ہے، لیکن مجبوری کے باعث میں نے ان بچوں کو بھی بیچ دیا۔ میں بڑی اداس تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، یہ لو پیسے۔ اس نے میرے ہاتھوں میں نوٹوں کی موٹی گڈی تھمائی تو میں خوش ہو گئی، لیکن پھر میری آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ آج میری بکری، جس کا نام میں نے لیلا رکھا ہوا تھا، وہ مجھ سے جدا ہونے والی تھی۔ میں اس نوجوان سے کہنے لگی، اس کا بہت خیال رکھنا، میں نے اسے بڑے پیار سے پالا ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، فکر نہ کرو، میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بس مجھے اس کی ضرورت ہے۔ وہ بڑے پیار سے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتا اسے اندر جنگل کی طرف لے کر گیا تو میں حیرت سے دوچار ہو گئی، بھلا یہاں پر کون رہتا ہے؟ یہ نوجوان بکری کو لے کر یہاں کیوں گیا ہے؟ میرے من میں سوال اٹھا، لیکن مجھے رات گہری ہونے کا احساس ہوا تو جلدی سے پیسے اپنے دوپٹے کے پلو میں چھپائے اور تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے گھر جانے لگی۔ میرا نام مریم ہے، میرا تعلق گاؤں کے ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ میرے ابا گاؤں کی زمینوں پر کام کرتے تھے، یہاں کے سارے لوگ ہی وڈیرے کی زمین پر کام کاج کر کے اپنے گھر کا گزارا کرتے تھے، لیکن 2 مہینے پہلے ابا اچانک ہی شدید بیمار ہو گئے۔ انہیں اس قدر تیز بخار اور کھانسی کی شکایت ہوئی کہ فوراً ہی اماں اور میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے۔ ڈاکٹر کہنے لگے، تمہارے باپ کو ٹی بی کے مرض نے آن گھیرا ہے، ان کا علاج کروانا بہت ضروری ہے۔ یہ سنتے ہی میرے اور اماں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ہم 5 بہن بھائی تھے، جن میں سب سے بڑی تھی۔ مجھے اپنے ابا سے بہت پیار تھا۔ میں جانتی تھی کہ ابا کے علاوہ ہمارا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر ابا کو کچھ ہو جائے گا
तो शायद हमारा पूरा घर बर्बाद हो जाए। मुझे अब्बा की बहुत फिक्र थी, इसीलिए मैं अपनी प्यारी बकरी को बेचने पर भी तैयार हो गई थी। उस बकरी को मैंने जब ये 1 दिन की थी तब पाला था, जब मैंने अपने गुल्लक में पैसे जमा किए और फिर एक छोटा सा बकरी का बच्चा खरीदा। इस बकरी को मैंने अब बड़ा कर लिया था। उसने 2 बच्चे भी दिए और अब वो दूध भी देने लगी थी। लेकिन इन बच्चों को भी गांव में रहने वाली एक औरत खरीद कर ले गई थी। उन बच्चों को भी मैंने मजबूरी के बायस फरोख्त कर दिया था और अब घर के हालात इतने ख़राब थे कि नौबत बकरी बेचने तक आ गई थी। मुझे एक तरफ तो अफसोस था, मेरी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन दूसरी तरफ खुशी भी थी कि अब मैं इन पैसों से अब्बा का इलाज करवाऊंगी। फिर मैंने वो पैसे अम्मा के हाथ पर रखे तो अम्मा हैरान रह गई। कहने लगी, अरे बकरी 15,000 की बिकती है, तुझे किसने 40,000 रुपए दे दिए? वाह, मेरी बेटी को तो खूब सौदा करना आता है। मैं खुद भी हैरान थी कि मैंने उस नौजवान से ज़्यादा पैसे ले लिए जिसे दूध देने वाली बकरी की ज़रूरत थी। अगले ही दिन मैं और अम्मा अब्बा को डॉक्टर के पास ले गए थे। शहर में आकर पता चला कि यहाँ पर कितने ज़्यादा खर्चे हैं। जब डॉक्टर ने कहा कि उन्हें अस्पताल दाखिल करवाना पड़ेगा क्योंकि उनकी फेफड़े खांसी के बायस बहुत मुतासिर हुए हैं, ये सुनकर तो मेरे और अम्मा के होश उड़ गए थे। लेकिन हमने अब्बा को अस्पताल में दाखिल करवा दिया। उसी दिन एक औरत आकर कहने लगी, अरे तुमने इस अस्पताल में अपने बाप को दाखिल करवाकर गलती की है। यहाँ तो कोई आता है तो जिंदा हालत में वापस नहीं जाता, मानो उसकी लाश ही लेकर जानी पड़ती है। यह सुनकर मैं बहुत खौफजदा हो गई थी। मैंने फौरन अम्मा से कहा कि हम अब्बा का प्राइवेट इलाज करवाएंगे। अम्मा कहने लगी, पागल हो गई है क्या? पता भी है वहाँ की कितनी फीसें होती हैं और कितनी महंगी दवाइयाँ। बेटा, हम इतनी महंगी दवाइयाँ कैसे खरीदेंगे? आज तो तूने बकरी बेच दी है, कल को हम क्या बेचकर तेरे बाप का इलाज करवाएंगे? लेकिन मैं किसी सूरत अब्बा के मुर्दा वजूद को घर लेकर नहीं जाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि किसी तरह अब्बा ठीक हो जाएं। इसलिए मैंने जिद करके शहर के एक अच्छे प्राइवेट अस्पताल में अब्बा को दाखिल करवा दिया था। अभी तो चंद 1000 रुपए ही मेरे और अम्मा के पास थे, लेकिन उन्हें ये परेशानी खाए जा रही थी कि ये पैसे जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे। फिर शाम को अम्मा कहने लगी, तू चाचा के साथ घर चली जा, तेरे छोटे बहन भाई अकेले हैं, मैं तेरे बाप के पास रुकती हूँ, फिर 1-2 दिन में तू आ जाना। अम्मा ने मुझे बहलाकर घर भेज दिया था। पड़ोस में रहने वाले चाचा के साथ मैं घर आ गई थी। जल्दी जल्दी छोटे बहन भाइयों के लिए खाना बनाकर उन्हें खिलाया और ख़ुद भी थोड़ा बहुत खा लिया। मुझे अम्मा और अब्बा की परेशानी खाया जा रही थी, न जाने उन्होंने कुछ खाया होगा या नहीं। मैं बड़ी ही उदास थी। ये पैसा भी बड़ी चीज़ है, जिसके पास होता है तो उसकी तो दुनिया भी बदल जाती है और हम जैसे गरीबों की दुनिया बर्बाद हो जाती है। पैसों के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं। मुझे यही सोच सोच कर शिद्दत से रोना आ रहा था। लेकिन मैं सो रही थी जब अचानक ही मुझे अपनी बकरी की आवाज़ सुनाई दी। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, लेकिन जैसे ही उठकर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो हमारे घर के सहन में ही खड़ी थी। ये वापस कैसे आ गई? इसे तो मैंने बेच दिया था। मैं बार बार उसके जिस्म पर हाथ फेर रही थी, जबकि वो न जाने किस चीज़ को देखकर मुसलसल चिल्लाए जा रही थी। मैं हैरान थी कि जो खरीदार उसे लेकर गया था उसने उसे वापस कैसे आने दिया और ये अकेली घर तक कैसे पहुंच गई। हैरान परेशान सी मैं पूरी रात उसके पास बैठी रही, लेकिन मुझे समझ ना आई कि आखिर माजरा क्या है। सुबह मेरे बहन भाई भी उसे देखकर हैरान थे, जबकि पड़ोस में रहने वाली खाला जमीला भी इस बकरी को देखकर हैरान थी। कहने लगी, अरे तेरी अम्मा तो कह रही थी कि तूने इस बकरी को बेच दिया, तो ये फिर वापस कैसे आ गई? मैं भी शदीद उलझन का शिकार थी। अब मैं उसे क्या जवाब देती? मैं उसे कैसे बताती कि ये खुद ब खुद वापस आ गई है? लेकिन उस खरीदार ने उसे वापस कैसे आने दिया, ये बात मेरी समझ से बाहर थी। लेकिन अगली रात जो हुआ वो होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। जब मैं सो रही थी तो किसी ने मुझे आवाज़ देकर जगाया। मैंने जैसे ही आंखें खोलकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। घर का दरवाज़ा खुला पड़ा था, जबकि छोटे बहन भाई गहरी नींद सो रहे थे। लेकिन मैंने बकरी को घर से बाहर जाते हुए देखा, जैसे कोई उसे खींचता हुआ लेकर जा रहा हो। लेकिन वो एक नादीदा मखलूक थी। बकरी बाहर जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन कोई उसे मुसलसल गले में बंधी रस्सी से खींच रहा था। अब मैं डरती कांपती उसके पीछे पीछे जाने लगी।
देखते ही देखते वो जंगल में पहुंच गई थी जहां पे वो खरीदार मुझे मिला था। मैं सहमी हुई नजरों से इधर उधर देख रही थी। मामला मेरी समझ से बाहर था। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो बेइख्तियार मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैंने जैसे ही पलट कर देखा तो वो मुझे देख रहा था, लेकिन उसके पीछे एक लड़की भी खड़ी थी जो बेहद खूबसूरत थी और उसकी गोद में एक बच्चा था। बच्चा मुसलसल रोए जा रहा था, जबकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो बकरी मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है और उसे ज़बरदस्ती यहाँ कौन खींच कर ला रहा था। मैं उससे घबराहट में पूछने लगी कि ये मेरे घर कैसे पहुंची, तो वो गुस्से से कहने लगा, यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये बकरी हमारे पास क्यों नहीं रहना चाहती। देखो, हमें इसके दूध की ज़रूरत है, इसलिए मैंने महंगे दामों इसे तुमसे ख़रीदा था। मैं घबराकर कहने लगी, लेकिन मैंने तो इस बकरी को आपके हवाले कर दिया था, फिर ये मेरे घर तक कैसे पहुंची। तभी वो सामने आया और कहने लगा, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, इसीलिए मैं इस बकरी को खरीद कर अपने साथ ले गया था, लेकिन ये हमारे पास रहने को तैयार नहीं। ये मेरी बीवी और ये मेरा बच्चा है। अब ये बकरी तो 1 मिनट भी वहां रुकने को तैयार नहीं है, इसलिए तुम्हें ही कुछ सोचना पड़ेगा। मैं एक शर्त पर तुम्हें ये बकरी वापस भी दे सकता हूँ और अपने पैसे भी नहीं लूँगा। अगर तुम कुछ दिनों के लिए हमारे बच्चे को अपने पास रखकर इसे बकरी का दूध पिलाकर सेहतयाब करोगी तो उसकी ज़िंदगी बच जाएगी। वो दोनों शायद मियाँ बीवी थे जो मुझे आस भरी नज़रों से देख रहे थे। मैं घबराकर कहने लगी, लेकिन आपके बच्चे को क्या हुआ है। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और बड़े अजीब से अंदाज में कहने लगे, दरअसल हमें किसी ने कहा है कि हम अपने बच्चे को एक सफ़ेद रंग की बकरी का दूध पिलाएंगे तो ये जल्द ही सेहतयाब हो जाएगा, इसलिए हमें ये बकरी चाहिए हर हाल में, लेकिन ये हमारे पास रुकने को तैयार नहीं, इसलिए तुम हमारे बच्चे को ले जाओ। भला कोई अपने बच्चों को मेरे हवाले कैसे कर सकता था। मुझे उनकी बात समझ ना आई थी, लेकिन मैं अब इनकार भी नहीं कर सकती थी। अगर ये अपने पैसे वापस मांग लेता तो मैं भला वो पैसे कहाँ से देती। इसीलिए मैंने फौरन ही उनकी बात मानकर हाँ कह दी और कहने लगी कि मैं इस बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। मैं इसे अपना बच्चा समझकर अपने पास रखूंगी। मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहती थी कि कहीं वो अपने पैसे ना मांग लें। वो दोनों ये सुनकर बहुत खुश हुए। जैसे ही मैं बच्चे को लेकर आने लगी, अचानक ही उस नौजवान ने आवाज़ देकर मुझे रोका और कहने लगा, ये कुछ पैसे रख लो, ये हमारे बच्चे की ज़रूरत के लिए हैं। उसने इतने सारे पैसे अपनी जेब से निकाल कर दिए कि मैं हैरान रह गई थी। कांपते हाथों से वो पैसे मैंने ले लिए थे। मैं उस बच्चे को लेकर घर तो आ गई थी, लेकिन बार बार पैसों को देख रही थी। इस वक्त हमें पैसों की किस कदर शिद्दत से ज़रूरत थी और खुदा ने खुद ही बंदोबस्त कर दिया था। लेकिन दिल में ख्याल आया कि ये उस नौजवान ने अपने बच्चे के लिए दिए हैं, लेकिन उस बच्चे के लिए तो बकरी का दूध ही काफ़ी होगा, क्योंकि ये बहुत कम उम्र है। बच्चा निहायत ही खूबसूरत और सुर्ख व सफ़ेद था। उसकी आंखों से जैसे शुआएं निकल रही थीं। लेकिन सुबह तक सारे महल्ले में धूम मच गई थी कि हमारे घर में एक खूबसूरत बच्चा आया है जो बेइंतहा का हसीन है। ऐसा बच्चा हमारे पूरे गांव में नहीं था। सारी औरतें आकर मुझसे सवाल कर रही थीं कि ये बच्चा किसका है और कहाँ से आया है। अब मैं तो उस नौजवान को जानती भी नहीं थी, ना मुझे उसका नाम पता मालूम था, लेकिन साथ ही वो औरतें शक का इजहार भी करती कि पहले हम जिस बकरी को बेचने का जिक्र कर रहे थे, आज वो बकरी हमारे घर के सहन में मौजूद थी और साथ ही एक बच्चा भी आया था जो बहुत ही अनोखा लग रहा था, जिसकी सफ़ेद आंखें देखकर हर कोई डर रहा था। लेकिन मैंने किसी की परवाह न की और मैं किसी के भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। दूसरे दिन चाचा आकर कहने लगा, मैं शहर जा रहा हूँ तेरे बाप को देखने, लेकिन तू कैसे साथ जाएगी इस बच्चे को छोड़कर। मैं कहने लगी, ठीक है मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझसे छोटी मोना को आप अपने साथ ले जाएं। मैंने अपनी छोटी बहन को अम्मा अब्बा के पास शहर भेजने का फैसला किया। जल्दी जल्दी खाना बनाकर टिफ़िन में रखा और साथ ही अपनी छोटी बहन को समझा दिया पैसे देकर कि ये अम्मा के हाथ में देना और कह देना कि मरियम ने भिजवाए हैं। वो भी खुश हो गई थी कि वो अब्बा को देखकर आएगी। गो कि मेरा दिल भी बहुत चाह रहा था कि मैं भी अब्बा को देख कर आऊँ कि उनकी तबीयत ठीक हुई है या नहीं, लेकिन शायद इस बच्चे को छोड़कर जाना अब मेरे लिए नामुमकिन था। अब मैं पूरी तवज्जो उस पर मरकूज रखना चाहती थी, लेकिन मैं हैरान होती कि जैसे ही मैं बकरी का दूध निकालती, बच्चा एक ही वक्त में वो सारा दूध पी लेता था।
اس کی خوراک حد سے زیادہ تھی، اس لیے مجھے بکری کی خوراک کا بھی خیال رکھنا پڑ رہا تھا۔ میں اس بچے کو اپنے ساتھ لے کر کھیتوں میں جاتی اور اچھے سے اچھا چارہ لے کر آتی تھی۔ میں اسے بالکل ٹھیک کرنا چاہتی تھی۔ حالانکہ بچہ کچھ کمزور اور بیمار لگتا تھا، لیکن شکل و صورت سے وہ بہت خوبصورت تھا۔ لیکن آخر ان دونوں نے اس بچے کو میرے حوالے کیوں کیا ہے؟ بار بار میرے ذہن میں یہی سوال ابھرتا۔ لیکن فی الوقت مجھے صرف اپنے ابا کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، اس لیے اس سے زیادہ میری سوچ کہیں پر بھی نہیں جا رہی تھی۔ پھر 3-4 دن گزرے تھے۔ میں نے دیکھا کہ بچے نے کچھ جان پکڑ لی تھی، لیکن ایک انوکھی بات تھی کہ بچہ ساری رات جاگتا رہتا اور پورا دن سوتا رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کسی بھی ہمسائے سے آنے والی عورت کی نظر اس پر نہیں پڑتی تھی۔ لیکن ابھی 3 دن ہی گزرے تھے کہ اچانک آدھی رات کو دروازے پر دستک ہوئی۔ چھوٹی بہن نے آ کر مجھے بتا دیا تھا کہ ابا کی طبیعت اب تھوڑی بہتر ہے، لیکن اماں بار بار پوچھ رہی تھی کہ یہ پیسے کہاں سے آئے۔ باجی، اب اماں پوچھیں گی تو آپ کیا جواب دیں گی؟ اور میں نے اس بچے کے بارے میں بھی اماں کو نہیں بتایا۔ میں نے اسے ٹال دیا تھا کہ میں خود ہی نمٹ لوں گی جب اماں گھر آئیں گی تو۔ مجھے ابھی اس بات کی فکر نہیں تھی، فکر تھی تو صرف ابا کی، جن کا علاج شہر کے پرائیویٹ ہسپتال میں ہو رہا تھا۔ لیکن اس رات دروازے پر دستک ہوئی تو میں بری طرح ڈر گئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے کھڑے دونوں نوجوان میاں بیوی کو دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ کیا وہ اپنے بچے کو لینے آئے ہیں؟ تبھی وہ لڑکی کہنے لگی، میں ایک بار اپنے بچے سے ملنا چاہتی ہوں۔ رات کی تاریکی میں وہ دونوں اپنے بچے سے ملنے کیوں آئے ہیں؟ دن میں بھی تو آ سکتے ہیں۔ میں یہ سوچ کر رہ گئی۔ پھر میں نے بچہ ان کے حوالے کیا۔ وہ دونوں اپنے بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ پھر لڑکا کہنے لگا، ابھی 40 دن تک اور ہمیں اس لڑکی کے پاس اپنے بچے کو رکھنا ہوگا، کیونکہ یہ تھوڑا کمزور ہے۔ میں حیران تھی کیونکہ مجھے تو یہ کہیں سے بھی کمزور نہیں لگ رہا تھا۔ پھر وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم ایک اچھی لڑکی ہو، تم ہمارے بچے کا بہت اچھے سے خیال رکھ رہی ہو۔ دیکھو، اسے 40 دن تک بہت اچھی دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ اگر تم تھوڑی سی بھی کوتاہی برتو گی تو ہمیں فوراً ہی خبر ہو جائے گی۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں اس بچے کے معاملے میں ذرا بھی غفلت کا مظاہرہ نہیں کروں گی، بلکہ اس کا خیال اپنی جان سے بھی بڑھ کر کروں گی۔ میں نے انہیں یقین تو دلا دیا تھا، لیکن جاتے جاتے وہ پھر سے مجھے ڈھیروں پیسے دے کر گیا تھا۔ یہ بات میرے لیے بڑی عجیب تھی۔ میں گھبرا کر اس سے کہنا چاہتی تھی کہ اس بچے کی خوراک کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف دودھ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں پیتا ہے۔ لیکن پھر بھی پیسے لینے سے بھلا میں انکار کیسے کر سکتی تھی، جبکہ مجھے ان کی ضرورت بھی تھی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہا، لیکن دور اندھیرے میں جا کر وہ دونوں میاں بیوی غائب ہو گئے تھے۔ میں دوبارہ بچے کے پاس چلی آئی، جو دن بدن پھولتا جا رہا تھا۔ اس قدر صحت مند بچہ، جو بھی دیکھتا تو کہتا کہ اسے تو نظر لگ جائے گی۔ شاید زیادہ خیال رکھنے کی وجہ سے وہ دن بدن صحت پکڑ رہا تھا، لیکن میرے پاس مزید پیسوں کا بندوبست ہو گیا تھا، اس بات کی مجھے خوشی تھی۔ اب مجھے اس بچے سے عجیب سا لگاؤ ہو گیا تھا۔ میں اس بات پر اداس ہو جاتی کہ 40 دن گزرنے کے بعد یہ بچہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہو جائے گا، حالانکہ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ ادھر ابا کی صحت اچھی ہو رہی تھی تو ادھر بچہ بھی صحت یاب ہو رہا تھا، اور میں ہر دوسرے تیسرے دن اماں کے پاس پیسے بھجوا رہی تھی، کیونکہ بچے کے ماں باپ آ کر آدھی رات کو مجھے پیسے دے کر چلے جاتے۔ حالانکہ بچے کو اس وقت پیسوں کی نہیں بلکہ توجہ اور اس دودھ کی ضرورت تھی، جو کئی دنوں سے اس چیز سے محروم رہا تھا۔ لیکن وہ پیسے میرے کام آ رہے تھے، کیونکہ میں ابا کو پیسے بھجوا کر ان کا پرائیویٹ ہسپتال میں علاج کروا رہی تھی، جبکہ اماں ابھی تک گھر نہیں آئی تھی۔ وہ ابا کو اکیلا چھوڑ کر کیسے آ سکتی تھی؟ لیکن اماں کو وہیں پر پتہ چل گیا تھا کہ مریم کسی بچے کو پال رہی ہے۔ میں ڈر بھی رہی تھی کہ اماں کے سوالوں کا جواب کیسے دوں گی، کیونکہ پورے گاؤں میں کھلبلی مچ گئی تھی کہ میرے پاس ایک نوزائیدہ بچہ ہے جو نہ جانے کس کا ہے۔ لوگ مجھے شک بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن مجھے اس وقت کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا۔ ادھر شہر سے مجھے اچھی خبر آ رہی تھی کہ ابا صحت یاب ہو رہا ہے۔ ان کا بہترین علاج ہونے کی وجہ سے وہ پھر سے پہلے کی طرح زندگی گزارنے لگیں گے، یہی سوچ کر میں خوش ہو رہی تھی۔ لیکن ساتھ میں چاچا روزانہ اماں کا پیغام لے کر آتا اور کہتا کہ تیری ماں تجھے ہسپتال بلا رہی ہے، وہ تجھ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے۔
मैं घबरा कर कहती कि चचा मैं इस बच्चे को छोड़कर कैसे जाऊं। जैसे तैसे 30 दिन गुजर गए थे, लेकिन अब मैं जानती थी कि 10 दिन बाद इस बच्चे के माँ बाप आकर उसे अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन वो एक बड़ी ही खौफनाक रात थी, अंधेरी रात। उस रात में तेज आंधियां चल रही थी, शायद बारिश बरसने वाली थी। मैं उस बच्चे को लेकर कमरे में बैठी थी। हमारे घर में 2 ही कच्चे कमरे थे। मैंने एक कमरे में छोटे बहन भाइयों को सुलाया तो दूसरे कमरे में उस बच्चे को अपने साथ लेकर बैठ गई। फिर रात के आधे पहर मेरी आंख लग गई थी, लेकिन बच्चा तो रात भर सोने का नाम नहीं लेता था। लेकिन अचानक ही मुझे किसी ने झंझोड़ कर उठाया, जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैं चौंक उठी। मेरी आंखों ने जो मंजर देखा था उसे देखकर बेइख्तियार मेरे मुंह से चीख निकली थी। वो बच्चा मेरे सामने बैठा मुझे गौर से देखे जा रहा था। उसकी सफ़ेद आंखों में बला की शरारत थी, जैसे वो मुझे कुछ कहना चाहता हो। मैं हैरान भी थी कि इतना छोटा बच्चा भला खुद से कैसे बैठ सकता है, लेकिन वो तो जैसे मुझे कुछ बताना चाहता था। लेकिन जब उसके मुंह से आवाज़ निकली, उसे सुनकर तो मुझे अपनी चीखों पर इख्तियार नहीं रहा था। मैं कमरे से भाग कर जाना चाहती थी, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे मेरे जिस्म में जान ही ना हो। मेरा वजूद बिल्कुल साकित चारपाई पर पड़ा रहा, जबकि वो बच्चा मेरे सामने बैठा था। फिर कहने लगा, क्यों घबराती हो? मैं तो 10 दिन बाद चला जाऊंगा, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं। मैं उससे पूछना चाहती थी कि वो भला ऐसे कैसे बैठ सकता है और इतना छोटा बच्चा बात कैसे कर सकता है, लेकिन मेरी ज़बान से ये अल्फाज अदा ही ना हुए। मेरी आंखों में सवाल देखकर वो खुद ही कहने लगा, जो दोनों मियाँ बीवी तुमसे मिलने आते हैं वो मेरे छोटे बहन भाई हैं, जबकि मैं उनसे बड़ा हूँ। लेकिन मुझे एक इंसानी आमिल ने अपनी ताकत के बलबूते पर एक बच्चे की शक्ल में ढाल दिया था। लेकिन मुझे खुशी है कि 40 दिन गुजरेंगे तो मैं अपनी असल हालत में वापस लौट आऊँगा। ये सुनकर तो खौफ के मारे मेरी चीख निकल गई थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं कोई भयानक ख्वाब देख रही हूँ। फिर मेरा डरा हुआ चेहरा देखकर वो कहने लगा, मुझसे घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। दरअसल मैं एक जिनजाद हूँ। मैं बहुत ताकतवर था, लेकिन इंसानी दुनिया में जाने की वजह से मैं अपनी ताकतें खो बैठा। वो जालिम इंसान, उसने ना सिर्फ मुझसे मेरी ताकतें छीन ली, बल्कि मुझे बेबस करके एक छोटे बच्चे की शक्ल में ढालकर एक जंगल में फेंक दिया था। वो तो शुक्र था कि मेरे हमजाद वहां से गुजरे, जिन्होंने मुझे उठा लिया। वो मुझे अपने साथ ले गए थे, लेकिन अब इस जादू का कोई तोड़ नहीं था। मैं बिल्कुल बेबस किसी बच्चे की तरह उस जगह पर रहने पर मजबूर था जहां पर किसी का गुजर ना हो, वरना कोई भी मुझे ऐसी हालत में देखकर नुकसान पहुंचा देता। फिर मेरे छोटे बहन भाई जो हर रात तुमसे मिलने आते हैं, वो जो जिनजात तुम्हें पैसे देता है वो भी मेरा छोटा भाई है। उससे मेरा रिश्ता है, इसीलिए वो मेरा ख्याल रखता है। लेकिन हम बिल्कुल बेबस थे, एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस शैतानी आमिल ने इस बात का कोई तोड़ नहीं बनाया था। मैं तो मजबूर था, किसी से कुछ कह भी नहीं सकता था। लेकिन मेरे बहन भाई मेरे लिए परेशान थे। वो रोज़ाना किसी को तलाश करते कि शायद कोई मेरे ऊपर किए गए अमल का तोड़ बता दे। तभी वहां से एक दरवेश का गुजर हुआ। उस जंगल से कोई इंसान तो वैसे ही नहीं आता जाता था। हाँ, भूले भटके से कोई जड़ी बूटियां तलाश करने वहां पर चला आता था। उस दरवेश को देखकर मेरा जिनजाद भाई फौरन ही उसके पास गया। उसने उसे मेरी हालत से आगाह किया। वो मुझे देखकर बहुत अफसोस का इजहार कर रहा था। कहने लगा कि जिसने भी उसकी ऐसी हालत की है, खुदा उसे माफ़ नहीं करेगा। वैसे तो मुझे इसका तोड़ मालूम नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि अगर इस अमल के ज़ेरे असर आई हुई मखलूक किसी ऐसी बकरी का दूध 40 दिन तक पिए जिसके जिस्म पर काले रंग का चांद बना हो, तो वो जल्द ही सेहतयाब हो जाएगा। अब हम उस बकरी को कैसे तलाश करते? हमने कई साल तक उस बकरी को तलाश किया, लेकिन वो हमारी नज़र से नहीं गुजरी। लेकिन इत्तेफाक से उस दिन मेरा जिनजाद भाई खड़ा था जब तुम उस बकरी को बेचने आई थी। बकरी पर नज़र पड़ते ही वो पहचान गया था कि ये वही बकरी है जिसकी मुझे तलाश थी। उसके जिस्म पर बने हुए काले रंग के चांद और वो सफ़ेद रंग की बकरी हूबहू वैसी ही थी जैसी उस बुजुर्ग ने हमें बताई थी। यूं वो उसे खरीद कर अपने साथ ले गया, लेकिन ये हमारे कबीले में जाते ही तेज तेज चिल्लाने लगी। हमें खदशा था कि कहीं किसी इंसान तक इसकी आवाज़ न चली जाए। अगर ऐसा हो जाता तो हमारे लिए बहुत परेशानी की बात थी। हमने उसे बहुत अपने पास रखने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ।
क्योंकि ये हर रात वहाँ से भागने के लिए मचल जाती। ये एक जानवर है और जानवर जिन्नात के फौरन पहचान लेते हैं। उसने भी हमें पहचान लिया था। अब मैं तो पूरी तरह बेबस था, कुछ कर भी नहीं सकता था, लेकिन मेरे भाई ने बहुत कुछ सोच लिया था। जैसे ही उसने बकरी को छोड़ा तो ये भागती हुई वापस तुम्हारे घर पहुंच गई, क्योंकि ये वहां पर भी तुम्हें याद करती रहती थी। अब इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि मैं तुम्हारे घर में आकर रहूं और उसी बकरी का दूध पीऊं, फिर से मैं ऐसी ही हालत में लौट आऊं जैसा मैं पहले था। लेकिन यहाँ 40 दिन तक रहना मेरे लिए नामुमकिन था, इसीलिए मैं लोगों से छुप कर रहना चाहता था। मुझे ये भी डर था कि कोई मुझे पहचान ना ले। लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन मेरे जिनजात भाई तुम्हारी मदद करने के बहाने मुझे देखने आते थे। वो मेरे नाम से तुम्हें पैसे देकर जाते, लेकिन दर हकीकत वो तुम्हारी भी मदद करते थे, क्योंकि मुझे इन पैसों की नहीं बल्कि उस बकरी के दूध की ज़रूरत थी। और अब जब दिन ब दिन मेरी ताकतें वापस आ रही हैं, मैं जब चाहूँ अपनी असल हालत में वापस आ सकता हूँ, लेकिन मुझे पूरे 40 दिन गुजारने हैं ताकि दोबारा इस किए गए अमल का असर मेरे ऊपर नहीं हो। इसलिए आज मैंने तुम्हें हकीकत बता दी है ताकि तुम्हारे दिल में किसी किस्म का कोई खौफ ना रहे। जैसे ही 40 दिन गुजरेंगे मैं अपने कबीले में वापस लौट जाऊंगा। लेकिन तुमने जो मुझ पर एहसान किया है मुझे अपने घर में रखकर, मैं ये सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। मैं आंखें फाड़े हैरत से उस बोलते हुए बच्चे को देख रही थी, जो दर हकीकत एक जिनजात था। इतने दिनों से वो भेस बदल कर मेरे पास रह रहा था। मेरा बस न चल रहा था कि मैं अभी उठकर यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन मैं बिल्कुल साकित सी उसी चारपाई पर लेटी रही। फिर वहीं पर लेटे लेटे न जाने कब मैं सो गई थी। सुबह भी मेरी आंख खुली तो मेरा जहन बहुत भारी हो रहा था, लेकिन मुझे रात वाली बात अच्छी तरह याद थी। जैसे ही मेरी नज़र उस बच्चे पर पड़ी तो एकदम से ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो तो वैसे ही खेल रहा था जैसे वो रोज़ाना मुझे नज़र आता था। कहीं से भी नहीं लगता था कि वो एक जिनजात होगा। मैं नहीं चाहती थी कि किसी को भी उस पर शक हो, इसीलिए मैं सबकी तवज्जो उस पर से हटाना चाहती थी। अब सिर्फ 10 दिन ही तो बाकी थे, उसके बाद ये हमेशा के लिए अपने कबीले में वापस लौट जाता। मैं इतने दिनों से अब्बा से मिलने भी नहीं गई थी, लेकिन जब मेरी छोटी बहन आमना अब्बा से मिलने जाती, वापस आकर बताती कि बाजी अब्बा तो सेहत में बहुत बेहतर हो गया है। उस दिन आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं खौफ से उछल पड़ी। मैं जानती थी कि दरवाजे पर कौन होगा। वही दोनों जिनजात बहन भाई जो अपने भाई की खैरियत मालूम करने के लिए आते थे। मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला था। तभी वो जिनजात मुझे गौर से देखते हुए कहने लगा, हमारा बच्चा कहाँ है? हम उसे देखने आए हैं। मेरी ज़बान से अल्फाज भी अदा नहीं हो रहे थे। मैं घबराकर उससे कहने लगी, मैं जान गई हूँ कि तुम कौन हो। ये सुनकर वो दोनों चौंक गए थे। तुमने मुझसे झूठ कहा था कि तुम दोनों मियाँ बीवी हो और वो बच्चा तुम्हारा है, जबकि वो तो एक जिन्नात है जो बच्चा बनकर मुझसे बातें करता है। मैंने उसे हकीकत बता दी थी। यह सुनकर वो दोनों मुस्कुराए और कहने लगे, अच्छा हुआ जो उसने तुम्हें खुद ही हकीकत बता दी, वरना तुम अगर उससे पहले ही ये बात जान लेती तो कहीं उसका इलाज अधूरा ना रह जाता। लेकिन तुम परेशान ना हो, तुमने हमारी मदद की है, इस तरह हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हारा बाप उस अस्पताल में पड़ा है, इसलिए हम चुपके से तुम्हारी मदद कर रहे थे, और जब तक तुम्हारा बाप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं होगा हम ऐसे ही तुम्हारी मदद करते रहेंगे। तुम एक अच्छी लड़की हो और ये बकरी भी हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। हम इसे अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि बकरी को हासिल करने के बाद जो हमारा मकसद था वो पूरा हो गया है, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। उन दोनों ने तो मुझे खुश कर दिया था। फिर धीरे धीरे दिन गुजरने लगे और फिर वो दिन भी आ गया जब वो जिनजात हमेशा के लिए अपनी दुनिया में वापस जा रहा था। लेकिन उसने मुझसे वादा किया था कि मुझे उसकी मदद की जब भी ज़रूरत होगी तो वो मेरी मदद करने ज़रूर आएगा। फिर वो उस रात चला गया था, लेकिन दूसरे दिन जब मेरे बहन भाई उठे तो बार बार पूछते गए, बाजी वो बच्चा कहाँ चला गया? उसकी वजह से घर में कितनी रौनक थी। मैं उदास होकर कहने लगी, जहाँ से आया था वहीं चला गया, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन बाजी वो अपनी बकरी को क्यों नहीं लेकर गए? आपने तो ये बकरी बेच दी थी ना? मेरी छोटी बहन अजीब अजीब सवाल कर रही थी। मैं उसे कहने लगी कि अभी ये बकरी हमेशा हमारे पास ही रहेगी,
क्योंकि जिसने इसे खरीदा था उसने वापस उसे मुझे दे दिया है। फिर उस दिन पड़ोस में रहने वाले चाचा के साथ मैं अम्मा अब्बा से मिलने गई। अम्मा मुझे देखकर गुस्से से कहने लगी, तुझे जरा भी ख्याल नहीं कि तेरा अब्बा कितने दिन से तुझसे मुलाकात करना चाहता था। मैं अम्मा से कहने लगी, अम्मा जो जिम्मेदारी मैंने उठाई थी मैंने उसे पूरा कर दिया है। अब मैं आपके पास ही रहूंगी, बल्कि अब्बा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अम्मा कहने लगी, ठीक है, मैं थोड़े दिनों के लिए घर जा रही हूँ, तब तक तू अपने अब्बा के पास रुक। लेकिन मैं तुझसे एक बात जरूर पूछना चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं क्योंकि ये अस्पताल है। घर जाकर तुझसे वो बात पूछूंगी। अम्मा मुझे घबराहट में छोड़कर घर चली गई थी, जबकि मैं अब्बा के पास रुकी हुई थी। ये एक प्राइवेट अस्पताल था, यहाँ पर ज्यादा लोग भी नहीं थे। दिन तो जैसे तैसे गुजर जाता था, लेकिन रात को अकेले में मुझे बहुत डर लगता था। मैं अब्बा से मिलकर आई थी और उनकी सेहत देखकर हैरान हो गई। अब्बा कहने लगा, मेरी बेटी, तूने मेरा प्राइवेट इलाज करवाया, देख मैं कितनी जल्दी ठीक हो गया, वरना मुझे तो अपनी जिंदगी की उम्मीद भी नहीं थी। यह सुनकर मैं अब्बा से कहने लगी, नहीं अब्बा, मरियम के होते हुए आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं दिल ही दिल में उस नेक जिनजात को दुआएं दे रही थी जिसने मेरी मदद की थी। फिर 2 दिन गुजरे जब डॉक्टर कहने लगा, आप अपने मरीज को लेकर जा सकती हैं, जितना भी बिल बना है उसे अदा करके जाइएगा। यह सुनकर मैं घबरा गई थी। न जाने बिल कितने लाखों में होगा और मैं वो पैसे कहाँ से दूंगी। फिर जब मैंने रिसेप्शन पर बैठी लड़की से पूछा कि कितना बिल है, तो वो कहने लगी कि आपका बिल 3 लाख है। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। अब्बा को यहाँ पर ना सिर्फ नाश्ता और खाना दिया जाता था, बल्कि मुनासिब दवाई और अद्वियात भी अस्पताल खुद ही फराहम करता था। लेकिन मैं बुरी तरह परेशान हो गई थी। अगर गांव में अम्मा के पास फ़ोन करती तो वो भी परेशान हो जाती। अब मेरी परेशानी हद से सिवा थी, लेकिन मैं अब्बा को इस बात से आगाह नहीं करना चाहती थी। दूसरे दिन डॉक्टर ने मुझे बुलाया और कहने लगा, आप अपने मरीज को लेकर जा सकती हैं। मैं घबराहट में कहने लगी, लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने तो अभी तक बिल भी अदा नहीं किया। तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगे, लेकिन आपका बिल तो अदा हो गया है। रात को कोई नौजवान आया था, वो आपका बिल देकर गया है। ये सुनकर मैं भी हैरान थी कि आखिर कौन बिल देकर गया है। लेकिन अब्बा को मैं अब अपने साथ गांव लेकर जा रही थी। वो जो कोई भी था, मेरे दिल से उसके लिए दुआएं निकल रही थी। मैं जो बीमारी की हालत में अब्बा को अस्पताल लेकर आई थी, आज जब वो सेहतयाब हो गए थे तो मैं उन्हें अपने साथ लेकर जा रही थी। मैं अपने दिल में अजीब सी खुशी महसूस कर रही थी, ऐसी खुशी जो आज से पहले मैंने कभी महसूस नहीं की थी। मैं जानती थी कि गांव में छोटे बहन भाई और अम्मा अब्बा का इस्तकबाल करने को तैयार बैठे होंगे। रास्ते में अब्बा कहने लगा, मरियम बेटी, सच सच बता, तूने मेरा इलाज किसी से कर्जा लेकर करवाया है? देख, तूने वडीरे से कर्जा लिया है तो ये बहुत परेशानी वाली बात है, क्योंकि वो एक सूदी इंसान है, सूद पे कर्जा देता है। मैं अब्बा से कहने लगी, अब्बा, आप अभी ठीक हुए हैं, आपको इन बातों को सोचने की ज़रूरत नहीं, बस यूँ समझ लें कि अल्लाह ने हमारी मदद की है। फिर मैं अब्बा को लेकर घर आ गई थी। हमारे घर में तो जैसे जश्न का समा था, लेकिन अम्मा मुझे बार बार आंखें दिखा रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो मुझसे नाराज़ है। फिर वो मेरा बाजू पकड़ती हुई दूसरे कमरे में ले जाकर कहने लगी, मैं ये क्या सुन रही हूँ? गांव के हर आदमी की ज़बान पर यह बात है कि मरियम किसी के नाजायज़ बच्चे को पाल रही थी। सच सच बता कि वो बच्चा किसका था? ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। कहीं तूने ही तो हमारा मुंह काला नहीं किया है? अम्मा मुझे शक भरी नज़रों से देख रही थी। मैं रोते हुए कहने लगी, अम्मा, आपने ऐसा सोचा भी कैसे? क्या आप जानती हैं कि अब्बा का इलाज कैसे हुआ है और ये पैसे कहाँ से आए? अम्मा कहने लगी, मुझे तुझ पर यही तो शक था कि तूने किसी से पैसे लेकर उसके साथ कुछ गलत कारी की है। सच बता कि आखिर मामला क्या है? अब वो गहरा राज बताने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर अम्मा को वो बात बता दी जो मैं सबसे छुपाना चाहती थी। अम्मा की आंखें हैरत से फटी रह गई थी। कहने लगी, क्या तू पागल हो गई है? क्या जिन्नात का जिक्र कर रही है? ऐसी बातें अपने मुंह से नहीं निकालते। मैं कहने लगी कि अम्मा, यही सच है। वो नेक जिन्नात, उन्होंने ही मेरी मदद की है और उन्होंने यही कहा है कि जब तक हमारे घर में परेशानी रहेगी वो ऐसे ही चुपके चुपके हमारी मदद करते रहेंगे। और क्या तू ये बात जानती है कि अब्बा के अस्पताल का बिल कितना बना था? पूरे 3 लाख रुपए।
मैं भला वो बिल कहाँ से अदा करती और अब्बा को कैसे अपने साथ लेकर आती। मैंने तो तुझे भी इतनी बड़ी परेशानी से आगाह नहीं किया, सिर्फ इसीलिए कि तू न जाने किस हाल में होगी। लेकिन न जाने आधी रात को किसने हमारा बिल दिया और फिर डॉक्टर ने अब्बा को मुझे ले जाने की इजाज़त दे दी। अब अम्मा आंखें फाड़े हैरत से ये बात सुन रही थी। फिर बेइख्तियार खुदा का शुक्र अदा करने लगी जिसने हमारी गैबी मदद भेज दी थी, वरना हम ना तो अब्बा को सेहतयाब देखते और ना ही हमारी ज़िंदगी बदलती। अब सारे गांव वाले मुबारकबाद दे रहे थे। सब आकर अब्बा से कहते कि ये सब तेरी बेटी मरियम की वजह से हुआ है। मैं भी शुक्र अदा कर रही थी कि अगर मेरी ये बकरी मेरे पास ना होती तो कभी भी हमारे घर में ये खुशहाली ना आती। ये जो कुछ भी हुआ था सब उसी की वजह से हुआ था। मैं पहले से भी ज़्यादा अपनी बकरी का ख्याल रखने लगी थी। इस बार वो फिर हामला थी, इसलिए मैं बहुत खुश हो रही थी। जल्द ही वो बच्चे देने वाली थी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि पहले की तरह उसके बच्चे उसे जुदा नहीं करूंगी। पहले भी मैंने मजबूरी के तहत उसके बच्चों को बेच दिया था। अब फिर उसके यहाँ बच्चों की पैदाइश होने वाली थी। फिर उस दिन उसने 4 बच्चों को जन्म दिया। मैं उसके बच्चे देखकर बहुत खुश हो रही थी। फिर रात को भी मैं उसके बच्चों की देखभाल करती। उस रात भी मैं बाड़े में बैठी अपनी बकरी के बच्चे देखकर खुश हो रही थी जब अचानक ही मुझे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। मैं उसे देखकर डर गई थी। ये तो वही जिनजात था जो एक बच्चे के रूप में मेरे सामने आया था। मैं घबराकर कहने लगी, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी, तुमने बार बार मेरी मदद की है। तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, लेकिन अब मैं तुमसे कुछ लेने आया हूँ। मुझे इनमें से एक बच्चा चाहिए जिसका रंग सफ़ेद है और जिसके जिस्म पर ये चांद के निशान बने हैं। मैं उसे बच्चा देने के लिए तैयार थी, क्योंकि ये बकरी भी उसके भाई ने मुझसे ख़रीद ली थी, लेकिन वो तो उनका एहसान था जो उन्होंने मुझे वापस कर दी थी। मैं हैरान होकर कहने लगी, बच्चा तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम उसे क्यों लेकर जाना चाहते हो? तो वो कहने लगा कि दरअसल हमारे सरदार को ये बात पता चली कि वो बकरी जिसके जिस्म पर चांद के निशान होते हैं वो हमारे लिए बहुत अहम होती है, इसीलिए मैं इसे लेने आया हूँ। अब सरदार ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। हम इस बच्चे को जब अपने पास पालेंगे तो ये हमारे पास रहने का आदी हो जाएगा, फिर भाग भाग कर इंसानों की दुनिया में नहीं आएगा और यूं फिर हमें किसी के घर भी नहीं रहना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। जो तुम्हारी ज़ात पर इल्ज़ाम लगे हैं मैं उन्हें भी दूर करना चाहता हूँ। तो मैं मुस्कुराते हुए कहने लगी, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। सबसे पहले मेरे लिए मेरे माँ बाप हैं। उन्होंने मुझ पर यकीन कर लिया है, मेरे लिए यही बहुत है। ये सुनकर वो खुश हो गया और कहने लगा, ठीक है, तो मेरा तुमसे वादा है। तुमने मेरी ताकतें वापस लौटाने में मेरी मदद की है। अब जब भी तुम्हारी शादी होगी तो मैं तुम्हारा जहेज दूंगा। ये सुनकर मैं हैरान रह गई थी। फिर वो उस बकरी के बच्चे को लेकर चला गया जिसने अभी चंद घंटों पहले ही जन्म लिया था। मैं उस बकरी से उसके बच्चे को जुदा तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी। यूं वो बच्चा चला गया, लेकिन 3 बच्चे मेरे पास थे। फिर सारे मुझे मुबारकबाद देने लगे कि देखो, कोई भी बकरी आजकल के दौर में 4-4 बच्चों को जन्म नहीं देती, लेकिन तुम्हारी बकरी ने 4 बच्चों को जन्म दिया है। लेकिन एक बच्चा कहाँ गायब है? मैंने सबसे कह दिया कि मैंने एक बच्चे को बेच दिया है। फिर यूं ही दिन गुजरने लगे। अब मेरे पास बकरियों का रेवड़ था। दिन ब दिन उनकी तादाद बढ़ती जा रही थी, लेकिन हमारे घर के हालात भी उसी तेज़ी से बदल रहे थे। अब अब्बा भी काम करने लगा था। जो पैसे थोड़े बहुत जमा किए हुए रखे थे उनसे ही अब्बा ने एक दुकान खोल ली थी और अल्लाह के करम से दुकान खूब चल रही थी। अब मेरे लिए गांव से रिश्ते आने लगे, लेकिन मुझे कभी कभी उसी जिन जात की बात याद आ जाती जिसने मुझे जहेज देने का कहा था। मैं सोचती कि क्या वो सच में अपनी बात पूरी करेगा। फिर एक रिश्ता आया तो अम्मा अब्बा ने उसे मेरे लिए पसंद कर लिया। मैंने सारा मामला अम्मा अब्बा पर छोड़ दिया था। यूं सादगी से मेरी मंगनी हो गई और 6 महीने बाद शादी थी। अब मैं खुश थी कि घर के हालात भी ठीक हो गए हैं, लेकिन मैंने अम्मा से कह दिया था कि मैं अपनी बकरी को साथ लेकर जाऊंगी, क्योंकि मुझे उससे बहुत मोहब्बत थी। लेकिन मेरी शादी में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी था जब अचानक ही कोई दरवाजे पर आया था। अम्मा कहने लगी, इस वक्त कौन आया है? जैसे ही अम्मा ने दरवाज़ा खोलकर देखा, सामने 4 लोग खड़े थे जो नकाब लगाकर थे। कहने लगे, हम मरियम का जहेज लेकर आए हैं। अम्मा ये सुनकर डर गई थी। अम्मा कहने लगी,
بھائی کون ہو تم لوگ؟ تو وہ کہنے لگے ہم وہی ہیں جس کی کہانی مریم نے آپ کو بتائی ہے۔ یہ سن کر اماں تو کچھ بولنے کے قابل نہ رہی۔ دھیرے دھیرے وہ چاروں اندر آ کر سارا سامان رکھنے لگے اور آنن فانن غائب بھی ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد اماں کہنے لگی واہ مریم، تیری سادگی اور نرم مزاجی نے تو تیری زندگی بنا دی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ پہلے گاؤں کے لوگ تو تیری وجہ سے ہماری مدد کر دیا کرتے تھے، لیکن اب وہ نیک جنات بھی تیری مدد کرنے لگے۔ آخر تیرے اندر ایسا کیا ہے